So very good morning to all my friends. Myself Gaurav Sharma. I'm welcoming you on my YouTube channel, that is Eternal Biology. So today our point of discussion is about electrocardiograph. That is an important topic for NEET perspective as well as in MBBS if you are coming this year. Okay. So to discuss ECG, we will put our main focus on the clinical significance of ECG, and two main clinical significance are that the ST elevation occurring in myocardial infarction and hyperkalemia occurring in various pathological conditions. So why does this occur? We will discuss them surely. Okay, so now let us begin. So before studying an ECG, we would like to discuss that what does an ECG shows. So ECG shows the electrical events which are occurring in the heart. Okay, I was talking about body, so I'll leave it. So whatever electrical events, that is depolarization, repolarization, hyperpolarization, any electrical event which is occurring in the heart is seen by ECG. And the mechanical events such as contraction, relaxation are occurring after the electrical event has been produced. So the electrical events are produced by SA node, AV node, and in some rare condition by Purkinje fiber as well. Okay, so the electrical events are recorded by ECG machine. So you know that there are P waves, Q wave, R wave, S wave, T wave, ST segment, PR segment, PQ interval. One thing we will discuss that what is the difference between a segment and an interval. So remember that a segment doesn't involve any wave in it, while the interval may include a wave in it. For example, when we say the PR segment, it will not involve any wave. So the region where no wave is present is our PR segment, that is from ending of the T wave to the starting of R wave. And when we are talking about PR interval, then it must start from starting of the P wave and up to the starting of R wave. Okay, so this is clear. Now you all know that P wave will show atrial depolarization, QRS complex ventricular depolarization, and the T wave will show ventricular repolarization. Okay, the fact we will discuss more clearly are clinical significances of ECG. Now if in any ECG we will look that on y-axis there is voltage shown and on x-axis it is time duration shown, okay, in milliseconds. So what? Okay, so whenever we say that enlarge P wave, we see that the duration of P wave has been increased, not the magnitude. Okay, so when the P wave gets enlarged, it means that the atria is taking a longer time to depolarize. This can occur in several conditions in which the size of atria may be increased. For example, if the atrias are of this normal size, then it will take the normal time to get depolarized. But in several conditions, if atria is increased in size, then it will take a longer time to get depolarized. So in case of atrial enlargement, the P wave get increased, the P wave duration get increased. Same in the case of QRS complex, and in QRS complex the prominent wave is R. So the duration of R wave is enlarged, then it will show that ventricle depolarization is taking a longer time, which can occur due to increase in size of ventricles. Okay, the next comes our question is that ST segment. अब हमें ST सेगमेंट्स को अच्छे से समझना होगा कि ST सेगमेंट बता क्या रहा है एक्चुअल में हमें। सबसे पहले आप बात ये देखिए, अच्छे से ECG को देखिए कि जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, यानी जहां पर वोल्टेज जीरो है, उसी की स्ट्रेट लाइन में ST सेगमेंट है। ST सेगमेंट वोल्टेज के जीरो पर से स्ट्रेट लाइन है। इसका क्या मतलब है? ST सेगमेंट पर कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रही। अब देखिए ये कोई भी एक्टिविटी क्यों नहीं हो रही, ये मैं बताता हूं। देखिए, जैसे ही सबसे पहले एट्रिया डिपोलराइज हुए, उसके बाद वेंट्रिकल्स डिपोलराइज हुए। ओके, अब हार्ट में क्या होता है, आपने लेयर्स पढ़ी होंगी मसल्स की, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, एंडोकार्डियम डिपोलराइज होती है, फिर वो ऊपर जाके एपिकार्डियम तक डिपोलराइज करती है। जैसे ही वेंट्रिकल्स की सारी मसल्स यानी एपिकार्डियम की सारी
जो मसल्स है वो डीपोलराइज हो जाती हैं, उसके बाद क्या स्टार्ट होगा, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो उस जो गैप फेज है, कौन सा गैप फेज, जब सारे वेंट्रिकल की मसल्स डीपोलराइज हो गई, अब वो रिपोलराइज जाने के लिए उस टाइम गैप पर कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होती, तो तब वो हल्का सा एसटी सेगमेंट आता है, और उसके बाद वेंट्रिकल रिपोलराइज होते हैं तो हमारी टी वेव आ जाती है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिए कि कोई भी इन्फाक्टेड एरिया होगा, इन्फाक्टेड एरिया क्या होता है, जहां पर ब्लड सप्लाई रुक जाती है, दैट इज देयर इज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट इनसफिशिएंसी, उस कारण से वो एरिया डीपोलराइज्ड ही रहता है। अब डीपोलराइज्ड है तो अपने डीपोलराइजेशन की वेव भेजता रहेगा कंटिन्यूअसली। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जब हमारी नॉर्मल PQRS कॉम्प्लेक्स की वेव्स आती हैं, तब इन्फाक्टेड एरिया से जो वेव बनती है वो इनके अंदर ढक जाती है, वो हमें क्लियरली या फिर डिस्टिंग्विश में अलग से पता नहीं चलती। लेकिन जब एसटी सेगमेंट है, एसटी सेगमेंट में वेंट्रिकल तो डीपोलराइज नहीं है और ना ही वो रिलैक्स कर रहा है, वो गैप फेज है जहां पर उसकी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, किसकी, वेंट्रिकल्स की या हार्ट की। लेकिन जो हमारा इस्कीमिक पार्ट है, इन्फाक्टेड पार्ट है, वो तो डीपोलराइज है ही कंटिन्यूअसली, तो वो अपनी डीपोलराइजेशन की वेव कंटिन्यूअसली देता जा रहा है। तो वो कब हमें दिखेंगी, जब सब शांत होंगे। भाई जब बड़े लोग कुछ नहीं बोल रहे तब छोटे की आवाज सुनाई देगी, तो एसटी सेगमेंट के टाइम बड़े लोग चुप हैं, तो उस छोटी सी वेव हमें दिख जाएगी। कैसे दिखेगी, एज एन एलिवेशन इन एसटी सेगमेंट। तो हम ये पता कर सकते हैं कि जब भी एसटी सेगमेंट एलिवेटेड है, इसका मतलब है हार्ट के अंदर कोई इन्फाक्टेड रीजन प्रेजेंट है जो कि कंटिन्यूअसली डीपोलराइजेशन वेव को प्रोड्यूस कर रहा है, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हम पता लगा सकते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपका। अब हम बात करते हैं टी वेव की। तो देखिए टी वेव हमें क्या बताता है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ओके, सो टी वेव शोज वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। अब देखिए एक कंडीशन है हाइपरकैलेमिया, उस कंडीशन में क्या होता है, टी वेव एनलार्ज हो जाती है, उसकी ड्यूरेशन एनलार्ज हो जाती है। इसका क्या रीजन है, इसका रीजन बहुत सिंपल है, हमेशा कॉन्सेप्ट लगाइए। ठीक है, चलिए देखिए, नॉर्मल हमें डीपोलराइज करने के लिए टी वेव क्या बता रही है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन बढ़ गई, इसका क्या मतलब है कि वेंट्रिकल रिपोलराइज स्टेट में ज्यादा टाइम के लिए रह रहे हैं, मतलब वो डीपोलराइज फिर से नहीं हो पा रहे हैं, यही मतलब है इसका। ठीक है, अब देखिए हमें डीपोलराइजेशन करने के लिए सोडियम को सेल के अंदर लाना होगा और रिपोलराइज करने के लिए पोटेशियम को बाहर भेजना होगा, लेकिन हमारा मेन फोकस डीपोलराइजेशन पे है। तो डीपोलराइजेशन के लिए हमें करना क्या होगा, व्हाट वी नीड टू डू इज ट्रांसपोर्ट सोडियम फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द मायोकार्डियल सेल्स। अब ये हम कम कर सकते हैं व्हेन वी हैव अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सोडियम को बाहर ज्यादा रखना होगा और पोटेशियम को अंदर ज्यादा रखना होगा नॉर्मल कंडीशन के लिए। लेकिन अगर हाइपरकैलेमिया कंडीशन आ चुकी है, मतलब पोटेशियम बाहर ज्यादा है, तो स्वाभाविक सी बात है, इट इज जनरल कॉन्सेप्ट की सोडियम अंदर ज्यादा होगा। अब सोडियम अंदर ज्यादा है तो हम डीपोलराइज कैसे कर पाएंगे, क्योंकि डीपोलराइज करने के लिए हमें सोडियम तो बाहर ज्यादा चाहिए था। तो इसीलिए जब हाइपरकैलेमिया हो जाता है तो उस कंडीशन में सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन नहीं हो पाता, और डीपोलराइजेशन नहीं हो पाएगा तो कंट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, कंट्रैक्शन नहीं हो पाएगा तो हार्ट कैसे स्टेट में रहेंगे, रिलैक्सेशन स्टेट में, और उस कंडीशन को बोलते हैं डायलेटेशन ऑफ हार्ट। सो दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ योर क्वेरीज। ओके, अब हम एक चीज और डिस्कस कर लें। क्या चीज डिस्कस कर लें, आई हैव रिटन इट हियर, आरबीसी में हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, सो दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। आप ही के लिए इतना सही है। होप यू गाइस लाइक द वीडियो, इफ सो देन प्लीज शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।